हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ज़रूर देखना एंड तक। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ नवंबर मंथ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download in the Play Store. This application is very helpful to you, that will help you in our preparation. All the PDFs, all the current affairs, all the material, all the quiz questions are provided by us on this particular application only. So if you are a government job aspirant, you must have this Carriers Cloud application. Now, once you have downloaded the application, you will move and open it. Then you have to log in with your Gmail ID. Once you have logged in, you will be shifted to this page. Now, if you have purchased our course, then with the course will be providing you daily PDF. In this daily PDF will be giving you multiple questions of the daily, as well as 20 questions quiz will be provided you on the daily basis. Then if we shift to weekly, we will be providing you with the weekly information also, such as weekly quiz of 50 questions each, then weekly PDF combining of whole week's important current affairs. Then if we are talking on monthly basis, we will be doing same on the monthly basis also, that will be providing you with a compiled PDF of the whole month's current affairs that are way important to you. This, if you are in English language student, then you will be provided with English, and you can switch language between English as well as Hindi. Then you should also know we help aspirants to prepare for banking exams also. Multiple quiz questions will be provided you, multiple quiz will be provided you on the daily basis, on monthly basis, on weekly basis, so that it will boost your confidence. Then we'll be providing you information related to various banking exams also. And apart from this, we have started an initiative that is very helpful, that providing you questions with topic wise, such as apps and web portals, important days, books and authors, obituary, national affairs, international affairs, important days, sports, defense, everything. Each topic will contain individual information of that particular month that will boost your preparation to a next level. This is very important. These topic wise PDFs are very important. This will help you very much in boosting your preparations. Alright friends, so you should also know, if you use our code Vikas10, we will help you by giving extra 10% discount. So go grab this offer, this will help you a lot. This is a very useful application for an aspirant. So I urge you to go and download and check our plans. हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ऑफ नवंबर मंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सैटेलाइट जिसका नाम है ग्वांगमू 1, या फिर इसको SDG सेट भी कहते हैं। SDG से आपको याद होगा ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यूनाइटेड नेशन के 2030 का जो एजेंडा है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेट करने के लिए है, उसके अकॉर्डिंग ये सैटेलाइट बनाई गई। सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन से यूनाइटेड नेशन के एजेंडा के हिसाब से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बेसिस पे ये ग्वांगमू सैटेलाइट या फिर SDG सेट 1 को डेवलप किया गया। तो यूनाइटेड नेशन के 2030 एजेंडा जो रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, जो 2015 में अपनाया गया था, उसके बेसिस पे ये सैटेलाइट बनाई गई। पहली चीज़, किन की सैटेलाइट है ग्वांगमू 1? ग्वांगमू 1 आपकी चाइना की सैटेलाइट रहेगी। दूसरा, ये वर्ल्ड की पहली फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट है। ठीक है, अर्थ साइंस सैटेलाइट रहेगी। ये लॉन्च कहां से करी गई थी? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि कहां पे है? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ शेंगजी प्रोविंस। शेंगजी प्रोविंस के नॉर्दर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। वहां से आपकी ग्वांगमू को लॉन्च किया गया था। फिर इसमें लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट को लॉन्च करने में यूज किया गया था। लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट को यूज़ किया। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन ग्वांगमू से रिलेटेड हो गई। ये पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में शेंगजी प्रोविंस के वहाँ से लॉन्च की गई। ये बनी है अंडर यूनाइटेड नेशन के 2030 एजेंडा के बेसिस पे, जो कि 2015 में अपनाया गया था। एंड इसको लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। एंड ये चाइना में, या फिर पूछा जाए कि किस कंट्री से रिलेट करती है, तो चाइना से रिलेट करती है। आप इसको देख सकते हैं ग्वांगमू 1। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना से रिलेटेड ही 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में। अभी रिसेंटली ये 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है इनटू द ऑर्बिट यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। ठीक है, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के यूज से इन सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया गया। कहाँ से? इसको शीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, जो कि सिचुआन प्रोविंस में लोकेटेड है चाइना के। इसमें आपका जैसे मैंने बताया लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट को लॉन्च किया गया, तो इस हिसाब से अब ये लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की 396 फ्लाइट थी टोटल अब में, ये याद रखना। फिर और ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी? ये आपके चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करके चलना। अभी रिसेंटली 9 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, किस कंट्री के द्वारा? एप्सिलॉन रॉकेट की मदद से, वो है जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं? वो होती है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। इन्होंने एक काफ़ी स्मॉल लो बजट सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो रहेगी एप्सिलॉन रॉकेट। ये आपका जो काफ़ी स्मॉल बजट था, छोटा रॉकेट है, स्टिल इसने 9 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया। काफ़ी अच्छा ये इनका रिस्पांस रहा इस रॉकेट का। ये जो 9 सैटेलाइट्स है ना, ये प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा डेवलप की गई हैं, ठीक है। एंड 10 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी हेल्प किया इस रॉकेट्स को, इन सैटेलाइट्स को डेवलप करने में। अगर हम एप्सिलॉन रॉकेट की बात करें तो ये सिर्फ 2.6 मीटर डायमीटर में रहेगा, ठीक है। एंड इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी आपकी 26 मीटर की, 26 मीटर लंबा, और 2.6 मीटर इसकी डेप्थ रहेगी या डायमीटर रहेगा टोटल। इसका जो वेट रहेगा सिर्फ 96 टन है, बहुत छोटा, मैंने बताया ना, बहुत छोटा और लो बजट ये आपका प्रोजेक्ट था। एप्सिलॉन रॉकेट की वजह से 9 सैटेलाइट्स को स्पेस में लिया गया जापान के द्वारा, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं एप्सिलॉन 5 रॉकेट को यूज़ किया गया 9 सैटेलाइट्स को डिलीवर करने के लिए जापान के द्वारा। देखो कितना छोटा रॉकेट है। अगर इससे कंपेयर करें हम फैल्कन 9 से, या फिर आपके जो और नासा के रॉकेट्स हैं, जैसे चाइना का ही देखिए लॉन्ग मार्च रॉकेट, उनके कंपैरिजन में तो बहुत छोटे रॉकेट हैं जापान के, बट स्टिल इट डिड द वर्क। ये बहुत यूजफुल काउंट हुआ। मेन मोटिव आपका जो हमारा मोटिव हो वो पूरा होना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप उसने कितने ज़्यादा रुपए आपने उस पर खर्चा करा है। रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो जब इंडिया ने अपना सैटेलाइट जब मार्स के वहाँ भेजा था, तो बात हुई थी कि इंडिया ने उस पर इतना कम खर्चा, इतना वो लो बजट एंड इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट था कि वो इतना सस्ता था कि सिर्फ वहाँ पे जितने बाहर के देश अपनी एक फुटबॉल टीम पे खर्चा करते हैं उससे भी सस्ता था। कुछ 423 करोड़ रुपीज़ में वो प्रोजेक्ट डेवलप करके इंडिया ने, इसरो ने आपका मार्स पर प्रोजेक्ट भेजा था। तो वो बहुत अच्छा एक मिशन था। और क्या नाम था इंडिया के मिशन का? मंगलयान, जो कि 24 सितंबर 2014 से आपका मार्स को ऑर्बिट कर रहा है। चलो बात की बात है, ये वापस आ जाते हैं अपने सेशन पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 53 स्टारलिंक सैटेलाइट्स की, जो कि अभी रिसेंटली स्पेस, आपको पता होगा स्टारलिंक किसका मिशन है? पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ स्पेस एक्स का है। स्टारलिंक है क्या? जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ इन्होंने पूरे एटमॉस्फेयर में मल्टीपल सैटेलाइट्स, अराउंड 12,000 सैटेलाइट्स को एटमॉस्फेयर में डिपॉट करने की बात की गई। इससे क्या होगा कि एक पूरा नेटवर्क बनेगा, एंड एक बार नेटवर्क बन गया उससे क्या होगा, इवन इन द रिमोट एरियाज ये इंटरनेट को प्रोवाइड कर पाएगी कंपनी स्पेस एक्स। जहाँ पे अभी तक हम लाइंस नहीं भेज पाते, जहाँ पे कनेक्शन नहीं पहुँच पाता, जैसे पहाड़ों में ऊपर सिग्नल्स नहीं आते, पहाड़ों पे भी सिग्नल आएगा आपका। ऐसा एक पूरा नेटवर्क, एक जाल बना रहे, क्योंकि 12-15 हज़ार सैटेलाइट्स आप अगर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं तो वो पूरा एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है, एंड दे कैन ईजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये 53 और स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अभी स्पेस में भेजा गया। कौन सा रॉकेट लेके गया? स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट इनको स्पेस में लेके गया है, ठीक है। 53 मोर सैटेलाइट्स को केप कैंडेबल स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया, जो कि फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। आपको पता ही होगा जो फैल्कन 9 के रॉकेट्स होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब एक बार इनको अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी सैटेलाइट को, स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने के लिए, तो ये वापस डिस्ट्रॉय नहीं होते वहाँ पे, ये आके वापस अपना नॉर्मल लैंडिंग पोजिशन पे लैंड करते हैं, एंड देन ये वापस रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट मिशन को कैरी आउट करने के लिए। ऑलराइट, चलो
इसके अलावा याद रखना अभी स्पेस एक्स के क्रू 3 मिशन ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को सच एज नासा के राजा चौरी इंडियन ओरिजिन, टॉम मार्शबर्न, कायला बैरन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मैटिस मॉरर को एक 12 आवर लंबी स्पेस फ्लाइट से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इनको लॉन्च किया गया, ताकि ये कहाँ पे जाके डॉक करें? आईएसएस में जाके इनको भेजा गया फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन से, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इनको भेजा गया आईएसएस। 4 क्रू का ये मेंबर रहेगा, ठीक है। क्रू 3 मिशन इसको बोला जाता है, स्पेस एक्स का क्रू 3 मिशन। और 4 लोग मैंने आपको बताए कौन कौन है। इंडियन ओरिजिन राजाचारी जी, टॉम मैशबर्न, कायला बैरन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मैटिस मॉरनर, ठीक है। 22 घंटे की ये फ्लाइट रहेगी। कहाँ से? फ्लोरिडा से आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के। तो ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स किनके द्वारा? स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, ये याद रखना। कंट्री भी पूछ लेगा कि स्टारलिंक सैटेलाइट्स किनके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा भेजी गई, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा भेजी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड मिशन रहेगा ये गाउफेन 11 का, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन कॉन्शियसनेस सैटेलाइट रहेगी। किसके द्वारा भेजी गई? चाइना के द्वारा इनको अभी स्पेस में भेजा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। चाइना की स्पेस एजेंसी क्या होती है? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है, चाइना की स्पेस नेशनल एजेंसी है। लेकिन चाइना की किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गाउफमैन को अभी स्पेस में भेजा गया? तो वो है CASC, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के द्वारा इनको स्पेस में भेजा गया। ये थर्ड मिशन रहेगा गाउफेन का, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन कॉन्शियस सैटेलाइट है, ठीक है। यूएस की टेक्नोलॉजी को टक्कर देने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्पेस में भेजा गया है, याद रखना। और ये चाइना का 44वां मिशन रहेगा इन द ईयर 2021। मतलब चाइना अभी तक 44 लॉन्च कर चुका है 2021 में। नेक्स्ट, here you can say हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट टू मैच यूनाइटेड स्टेट्स की कैपेबिलिटी से मैच करने के लिए गाउफेन को स्पेस में भेजा गया। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, डार्ट। क्या है डार्ट मिशन? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है एंड ये कोई दूसरा सन है। इस सन के बाहर एक एस्ट्रॉयड घूम रहा है, इस ऑर्बिट में ये एस्ट्रॉयड है। तो अब नासा ने एक नया मिशन लॉन्च किया डार्ट के नाम से। इनका प्लान क्या है कि यहाँ से अपना यूएसए से एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे, जो कि जाके इस एस्ट्रॉयड से टकरा जाएगा। इस एस्ट्रॉयड का नाम डिडीमॉस, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना क्या है इस एस्ट्रॉयड का नाम? डिडीमॉस। ये स्पेसक्राफ्ट इससे जाके, ये डार्ट स्पेसक्राफ्ट का नाम रहेगा या फिर इस मिशन का, जो कि इसको जाके टकराएगा। इनका काम क्या होगा? टकराते ही अपना ऑर्बिट चेंज कर देगा, ठीक है। और जैसे ही इसने ऑर्बिट चेंज किया, हमें सक्सेस मिल जाएगी। इससे क्या होगा? इवन इन द स्मॉल इम्पैक्ट, अगर हम बाहर एटमो वैक्यूम में स्पेस में प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपना विदाउट एनी रेजिस्टेंस अपना ऑर्बिट या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों हेल्पफुल है कि मान लीजिए कल को कोई एस्ट्रॉयड अपना अर्थ की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे अगर हम उससे थोड़ा सा भी, अगर उसकी डायरेक्शन थोड़ा सा भी एंगल चेंज कर देंगे ना, तो वो हमारे अर्थ को मिस कर देगा। इसलिए हमें ये डाटा ज़रूरी है कि कितने इम्पैक्ट से हम वहाँ पे अपने उसकी डायरेक्शन एस्ट्रॉयड की इन फ्यूचर या फिर इसकी पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं। और ये हम टेस्ट कर रहे हैं डिडीमॉस पे। क्या नाम रहेगा एस्ट्रॉयड का? डिडीमॉस। प्रोजेक्ट का नाम डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट या डार्ट। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा। इसको कौन से रॉकेट? फैल्कन 9 रॉकेट ने इनको स्पेस में ले गया, या फिर इसको लेके जा रहा है मिशन स्पेसक्राफ्ट को। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये है डार्ट और डिडीमॉस, जो एस्ट्रॉयड का नाम है। आप ये देख सकते हैं क्या काम रहेगा इसका? टू किक एन एस्ट्रॉयड ऑफ द कोर्स, अपने कोर्स, अपनी ट्रेजेक्ट्री या फिर अपने जो वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उससे साइड कर देना उसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे धवन 1 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, पूछे जाने के पूरे चांस हैं कि अभी रिसेंटली ये क्या है? इंडिया का पहला फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, पहले चीज़ तो ये याद रखना, धवन 1 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ये पहला प्राइवेटली डेवलप्ड
फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, जिसको अभी आने वाले जो विक्रम 2 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होगा उसमें लॉन्च किया जाएगा धवन 1 को। एंड इसको डेवलप या फिर टेस्ट किसके द्वारा किया गया है, तो ये स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा अभी टेस्ट करा गया, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रहेगा स्काईरूट एरोस्पेस। इन्होंने धवन 1 को, जो कि एक पहला प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, जो कि आने वाले जो ऑर्बिटल मिशन होगा, स्पेस ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होने वाला है हमारा OBV विक्रम 2, उसमें यूज़ होने वाला है ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, जिसका नाम रहेगा धवन 1। और ये किससे रिलेटेड है, ये इंडिया से रिलेटेड है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इसको 3D प्रिंटर से डेवलप किया गया है यूजिंग ए सुपर अलॉय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी 2 चीज़ इनॉग्रेट की हैं। पहले सिंपल इसको याद रखना, 2 चीज़ इनॉग्रेट की हैं, दोनों आपकी इनोवेशन स्टार्टअप से रिलेटेड है। 2 चीज़ क्या है, दोनों कहाँ पे रिलीज़ की हैं, मोहाली पंजाब में की हैं। इतनी चीज़ पहले अपने दिमाग में बैठाइए। फिर इन्होंने पहली चीज़ इनॉग्रेट की है, वो है 650 टेराफ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट नाबी मोहाली। ये नाबी क्या है, नाबी आपका नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नाबी में ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी इन्होंने इनॉग्रेट की है, और नाबी की फुल फॉर्म नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में ये रहेगा। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड, अब ये टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का काम क्या होगा कि हैवी कंप्यूटेशंस को ये रन कर सके। दैट मीन्स किसी को इसके रिसर्च फैसिलिटी में या फिर कोई और अपना प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें इतनी हाई कंप्यूटेशन की ज़रूरत है, तो इसको वो यूज़ कर सके। बेसिकली अगर कोई स्टार्टअप भी इसको यूज़ करना चाहेगा, वो इसको यूज़ कर पाएगा इसी के लिए, ताकि कोई एक स्टार्टअप आने वाले टाइम पे, क्योंकि हमें पता है हमारा इस बार 55th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था 2021 में, तो इंडिया ने एक प्लेज लिया कि हम 75 स्टार्टअप्स जो कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड होंगे, बिग डाटा एनालिसिस वगैरह, इन सारे डोमेन्स या इन सारी फील्ड से रिलेटेड होंगे। ऐसे 75 स्टार्टअप्स की हम हेल्प करेंगे और इनको इंक्यूबेटर प्रोवाइड करेंगे। इस इंक्यूबेटर को ही iRise बोला गया है। ये iRise भी लॉन्च किया गया कहाँ पे, मोहाली पंजाब में, हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ये वो दूसरी चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था। पहली हो गई 650 टेराफ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटर, और दूसरा हो गया iRise, जो कि एक इंक्यूबेटर है जो मोहाली पंजाब में इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली इंडिया के 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका के बारे में। इंडिया का जो वहाँ पे एंटार्क्टिका में जो इंडिया का स्टेशन है, एंटार्क्टिक स्टेशन, उसका क्या नाम रहेगा, मैत्री। इंडिया का जो एंटार्क्टिक स्टेशन है वो है मैत्री। तो अभी 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन जा रहा है मैत्री पे। यहाँ पे 48 मेंबर्स जाएंगे जो कि आने वाले विंटर वहाँ पे स्पेंड करेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे वेरियस चीज़ों पे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड मच मोर डाटा कलेक्ट करेंगे आपका। और जो वहाँ पे 40th एक्सपेडिशन के जो साइंटिस्ट थे, जो मेंबर्स थे, अब वो वापस आएंगे एंड ये 48 मेंबर्स जाके वहाँ पे मैत्री में स्टे करेंगे फॉर द अपकमिंग विंटर। और ये इंडिया का कौन सा मिशन था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 41st मिशन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। याद रखना बस, मैत्री इंडिया के स्टेशन का नाम है जो कि एंटार्क्टिक में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, NBRC होता है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। आई रिपीट, DBT हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा, इनके द्वारा डेवलप किया गया। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का है डिपार्टमेंट, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, इनके द्वारा स्वदेश को डेवलप किया गया। अब ये स्वदेश क्या है, स्वदेश वर्ल्ड का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा एंड एनालिटिक्स सिस्टम रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्वदेश क्या है। स्वदेश आपका मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा एंड एनालिटिक्स है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्वदेश को डेवलप किसके द्वारा किया गया,
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा में लोकेटेड है, इनके द्वारा ये चीज़ डेवलप करी गई। तो 3 चीज़ हो गई आपको याद रखने के लिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा एंड एनालिटिक्स, मतलब आपकी ब्रेन से इमेजिंग की करेगा, आपकी ब्रेन से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करें तो वो कौन सी स्टेट रहेगी जिनके द्वारा अभी एक अकीला X2 ड्रोन को यूज़ किया गया ताकि मेडिसिन को डिलीवर करा जा सके। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा, वो कौन सी स्टेट रहेगी, मेघालय रहेगी। ड्रोन का नाम क्या रहेगा, ड्रोन का है आपका अकीला X2। इसी के साथ साथ ड्रोन की बात करें तो पहला ड्रोन मेला, फर्स्ट ड्रोन मेला इंडिया का कहाँ पे, किस स्टेट में और किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया था, तो ग्वालियर सिटी में इनॉग्रेट हुआ, ग्वालियर सिटी में कंडक्ट कराया गया था पहला ड्रोन मेला इंडिया का। और ग्वालियर कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, और अकीला X2 ये वो ड्रोन है जो कि मेघालय में यूज किया जाएगा टू डिलीवर मेडिसिन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस कंट्री का नाम बताओ जो अपना रोवर सेंड करेगा मून पर बाय 2024 ताकि वाटर को सर्च किया जा सके मून पर, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ याद रखना पार्टनर इनका कनाडा भी रहेगा। कनाडा के साथ कोलैबोरेशन में ऑस्ट्रेलिया रोवर सेंड करेगा मून पर 2024 तक ताकि वाटर का सर्च कर सके, हम पानी ढूंढ सके चांद पर। नेक्स्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी कि वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो कि एक अभी ऑर्बिटल रीफ या फिर एक कमर्शियल बिजनेस स्पेस स्टेशन डेवलप करने की बात कर रही है। वो है आपकी जेफ बेजोस की कंपनी, जो स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, ये एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन डेवलप करने की बात कर रही है। कमर्शियल स्पेस स्टेशन, ये इनका प्रोजेक्ट रहेगा कि यहाँ पे हम लोगों को भेज सकें और एट अ टाइम 10 लोग यहाँ पे स्पेंड करेंगे इस कमर्शियल स्पेस स्टेशन में। ट्रैवल को एक, हमें पता है लोगों को ट्रैवल करना कितना पसंद है, तो एक क्यों ना स्पेस ट्रैवल ही स्टार्ट कर दिया जाए। एक होटल कह सकते हैं आप इसको एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन की जगह ये बोलिए एक होटल आपका स्पेस में खोलने की बात की जा रही है। किस कंपनी के द्वारा, ब्लू ओरिजिन। इनका प्लान है टू सेटअप ऑर्बिटल रीफ स्पेस बिजनेस पार्क आ जाए, ऑर्बिटल रीफ आ जाए, कमर्शियल स्पेस स्टेशन की बात की जाए। कौन करने की बात कर रहा है, ये ब्लू ओरिजिन बात कर रहे हैं। एंड इनका टारगेट है 2025 से 2030 के बीच में हम इसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। एट ए टाइम यहाँ पे 10 मेंबर्स स्टे कर सकते हैं। एंड जो इसका एरिया रहेगा वो 32,000 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा इस कमर्शियल स्पेस स्टेशन का। अब यहाँ देख सकते हैं किसकी बात, ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे कनाडा भी मेंशन कर दीजिए, बट इंपॉर्टेंट कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया का ये पहला मिशन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नासा ने अभी एक नया मिशन सेलेक्ट किया है, इनकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मिशन रहेगा। इनकस की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इनकस होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेक्टिव अपड्राफ्ट्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेक्टिव अपड्राफ्ट्स, ये इनकस की फुल फॉर्म है। ये नया मिशन है जो कि नासा के द्वारा सेलेक्ट किया गया था टू स्टडी स्टॉर्म्स एंड इम्पैक्ट्स ऑन द क्लाइमेट मॉडल। तो जो आपके स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे क्लाइमेट मॉडल पे, उनको स्टडी करने के लिए एक नया मिशन इनकस लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। ठीक है, एंड ये एक्सपेक्टेड है 2027 तक इसको लॉन्च किया जाए। इस पे जो टोटल स्पेंडिंग की बात की जा रही है वो है $177 मिलियन का अमाउंट स्पेंड किया जाएगा ताकि इस मिशन को एग्जीक्यूट कराया जा सके। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of time with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam and many others detail. Apart from this, you can see here, we are covering the whole syllabus here like data analysis on D3, then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare that will help you
or they are the expected questions that will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.